Assalamu alaikum everyone. This is your course in charge Dr. Nigar Server. Today I would like to start my another session about your course Introduction to Mass Communication. In this session we will discuss function of mass communication, macroanalysis and microanalysis. The function of mass communication performed by the mass media for the entire society. This approach is called macroanalysis. This viewpoint focuses on the apparent intention of the mass communicator and emphasizes the purpose inherent in the media content. If we look through a close-up lens at the individual receivers of the content, the audience, and ask them to report on how they use media, this approach is called microanalysis. Sometimes the end result of these two methods are similar in that the consumer uses the content in the way that the source intended. Sometimes they are not similar and the consumer uses the media in a way not anticipated by the mass communicator, a phenomenon noted by both the functional and critical cultural paradigms. Let's begin our analysis by using the wide-angle lens, which is macroanalysis, function of mass communication for society. For society to exist, certain communication needs must be met. These needs existed long before Gutenberg bolted together his printing press and Morse started sending dots and dashes. Primitive tribes had sentinels who scanned the environment and reported dangers. Council of elders interpreted facts and made decisions. Tribal meetings were used to transmit these decisions to the rest of the group. Storytellers and entertain the group. As society became larger and more complex, these jobs grew too big to be handled by a single individual. Throughout the following discussion, we will examine the consequences of performing these communication functions by means of mass as opposed to interpersonal communication. There may be instances in which these consequences are undesirable from the point of view of the welfare of the society. These harmful or negative consequences are also called dysfunction. Now come to different types of macroanalysis. Function of mass communication for society, which is known as macroanalysis, include surveillance, interpretation, linkage, transmission of value, mass media and socialization, TV and socialization, and entertainment. इस सेशन में हम फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन के बारे में एक डिटेल सेशन कर रहे हैं. इसमें आपको मैक्रो एनालिसिस और माइक्रो एनालिसिस दोनों के बारे में बताया जाएगा. मैक्रो एनालिसिस, वाइड एंगल लेंस फॉर सोसाइटी, ठीक है, ये बड़ी रेंज में होता है और इसमें पूरी सोसाइटी को इन्वॉल्व किया जाता है. पूरी सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं. और जब हम
माइक्रो एनालिसिस करेंगे तो वो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए होता है, ठीक है। बट दिस सेशन वी विल डिस्कस फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन फॉर सोसाइटी, which includes number 1 is surveillance. Surveillance refers to what we popularly call the news and information role of the media. Surveillance means the news and information role of the media. The media have taken the place of sentinels and outlooks. The output of the thousands of media journalists in the country is impressive. The major television network regularly scheduled news programs and provide similar services. Websites such as CNN.com update news continuously, and many big city radio stations broadcast nothing but news. News magazines and daily newspapers and weeklies also spread the news. The size of the news audience is equally impressive. On any given day, million people are exposed to mass communicated news. The first function of the macroanalysis is surveillance. Surveillance का function आगे जाके मज़ीद हम इसको सब डिवाइड करेंगे. बेसिकली ये फंक्शन क्या है? न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन रोल ऑफ द मीडिया. थ्रू सर्विलेंस आपको न्यूज़ मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसमें न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, मैगजीन्स सब इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है. इनकी मदद से न्यूज़ जो होती है वो पब्लिक तक पहुंचती है और इसी को हम सर्विलेंस फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं. सर्विलेंस फंक्शन को हम मज़ीद सब डिवाइड करते हैं: warning surveillance and instrumental surveillance. The surveillance function can be divided further into two main types. Number 1 is warning or beware surveillance, and the second one is instrumental surveillance. Now discuss warning surveillance. Warning or beware surveillance occurs when the media inform us about threats from terrorism, hurricanes, depressed economic condition, increasing inflation, or military attack. These warnings can be about immediate threats. A television station interrupts program to broadcast a tornado warning, or they can be about long-term or chronic threats. A newspaper runs a series about air pollution or unemployment. There is, however, much information that is not particularly threatening to society that people might like to know about. Instrumental surveillance. Instrumental surveillance has to do with the transmission of information that is useful and helpful in everyday life. News about films playing at the local theater, stock market prices, new products, fashion ideas, recipes are example of instrumental surveillance. सर्वेलेंस दो टाइप की है. एक सर्वेलेंस है वार्निंग और बीवियर सर्वेलेंस. अनदर सर्वेलेंस इज इंस्ट्रूमेंटल सर्वेलेंस. वार्निंग सर्वेलेंस हमें बताती है अबाउट थ्रेट, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो इन द फॉर्म ऑफ टेररिज्म, ठीक है, या कोई सैलाब, ज़लज़ला, डिप्रेस इकोनॉमिक कंडीशन, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, कोई मिलिट्री अटैक होने वाला है, तो
इस तरह की न्यूज़ जब आपके पास पहुंचेगी तो इट मीन्स ये जो है वार्निंग सर्वेलेंस है। वार्निंग सर्वेलेंस के अलावा दूसरी टाइप है आपके पास इंस्ट्रूमेंटल सर्वेलेंस। ये है आपकी डेली लाइफ से मुतालिक, ठीक है, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आप तक पहुंच रही है इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटल सर्वेलेंस। ठीक है, कोई फिल्म लगी है लोकल थिएटर में तो वो आपको किसी भी न्यूज़पेपर में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या अब तो सोशल मीडिया भी है उसमें आपको इसके बारे में फ़ौरन इत्तला दी जाती है। स्टॉक मार्केट प्राइसेस, ठीक है, प्राइसेस आते हैं, पेट्रोल के प्राइसेस रेज हो रही है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, आपको वहाँ से मिलती हैं। फैशन से रिलेटेड न्यूज़ है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल सर्विलेंस। ठीक है, ऐसी न्यूज़ जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो। एग्जाम्पल ऑफ सर्विलेंस अकर in what we traditionally label the news media. People magazine and Reader Digest perform a surveillance function, most of it's instrumental. Smaller, more specialized publications such as technical journals also perform the job of surveillance. In fact, the surveillance function can be found in content that is primarily meant to entertain. Different channels perform a surveillance function for fashion and designer footwear. कुछ मैगजीन्स ऐसे होते हैं जो इंस्ट्रूमेंटल सर्वेलेंस का फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइक रीडर डाइजेस्ट एक बहुत पॉपुलर मैगजीन है, या अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ उर्दू डाइजेस्ट। ठीक है, इसमें आपको इंस्ट्रूमेंटल सर्वेलेंस डेली लाइफ से रूटीन आपको इसमें आर्टिकल्स मिलेंगे जो कि इंफॉर्मेटिव भी होते हैं और आपको एंटरटेन भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सर्वेलेंस की दो टाइप है, वार्निंग और बीवेयर सर्वेलेंस, जो आपको किसी भी आने वाले थ्रेट से रिलेटेड न्यूज़ देती है, और दूसरी है इंस्ट्रूमेंटल सर्वेलेंस जिसमें आपको डेली लाइफ से रिलेटेड न्यूज़ मिलती है। कुछ मैगजीन्स भी होते हैं जो इंस्ट्रूमेंटल सर्वेलेंस का फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं। इसी तरह कुछ चैनल्स भी होते हैं जो इस फंक्शन को प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, तो अब इस पे जो बात होगी कॉन्सिक्वेंसेस, इसका नतीजा क्या निकलता है। आपके पास थ्रेट्स से रिलेटेड भी न्यूज़ आ रही है, डेली लाइफ से रिलेटेड भी न्यूज़ आ रही है, तो व्हाट आर सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ relying on the mass media to perform this surveillance function? In the first place, news travels much faster, especially since the advent of the electronic media and of course after the advent of computer internet. ठीक है, आपके पास न्यूज़ आती है, बहुत फास्ट न्यूज़ आ रही है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब कंप्यूटर के ज़रिए। ठीक है, पहले जिस न्यूज़ को आने में महीनों लग जाते थे, साल लग जाते थे, अब लम्हों भर में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख़बरों की न्यूज़ आप तक पहुंच रही है। ठीक है, और इस दौर में सारे चैनल्स लगे हुए हैं। ठीक है, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं होती है जो फ़ौरन आप तक ना पहुंच जाए। ठीक है, छोटे से छोटा वाक़या होगा वो पूरी दुनिया में पल भर में चला जाएगा। बट इससे क्या होता है, इससे एक नुकसान भी हो रहे हैं। ठीक है, डिसफंक्शन, कुछ डिसफंक्शन भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। स्पीड समटाइम्स लीड टू प्रॉब्लम्स, inaccuracies and distortions travel just as fast as truthful statements. ठीक है, न्यूज़ आपके पास आ रही है, बहुत स्पीडी न्यूज़ है, फ़ौरन आ रही है, बट इससे एक प्रॉब्लम आ रही है आपकी, inaccuracies and distortion। ठीक है, ख़बरें आपके पास inaccurate भी आ जाती हैं क्योंकि वो जल्दी आना है, तो इस वजह से आप जो है उसको फ़ौरन दे रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, आप फिर उस पर वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। The second consequence is a bit more important. The media rely news from environments beyond our immediate sense,
न्यूज़ दैट वी कैन नॉट ईजिली वेरीफाई। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, स्पीडी न्यूज़ आ रही है, फ़ौरन आ रही है, और हर चैनल को ज़ाहिर है नंबर 1 आने के लिए उसको फ़ौरन देना होता है, तो बाज़ दफ़ा इनएक्यूरेट न्यूज़ भी आ जाती है। ठीक है, कुछ एंगल उसके सही नहीं होते हैं, बट आपने उसको, क्योंकि आपको मार्केट में रहना है, ठीक है, आपके कंपेटिटर्स बहुत हैं, आपने फ़ौरन उसको ऑन एयर करना है, तो इस चक्कर में आपके पास बाज़ दफ़ा इस वजह से न्यूज़ वेरीफाई नहीं हो पाती है, जिससे जाहिर है कि आपकी वो क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ता है। तो ये इस स्पीड, ठीक है, तो जो दो चीज़ हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम डिसफंक्शन का रोल प्ले कर रही है। स्पीड इतनी ज़्यादा स्पीड में आती है कि वो वेरीफाई नहीं हो पाती है। Much of what we know about the world is machine processed. Hand-me-down information. News is pre-screened for us by a complex arrangement of reporters and editors, and our conception of reality is based on this second-generation information, whose authenticity we do not usually question. For example, human beings have walked on the moon. Millions saw it on TV. Not many saw it in person. Instead, we took the word of the television network. What we were seeing was fact, not fiction. However, some people feel that television staged the whole thing somewhere as a part of a massive government-inspired publicity stunt. ठीक है, अब टेलीविज़न में बाज़ चीज़ें, क्योंकि आप देख रहे होते हैं, आप मजबूर होते हैं कि यही सच है, आपको ये चीज़ें सच लग रही हैं। ठीक है, जैसे इसमें स्कूल ऑफ थॉट है कि इंसान चांद पे पहुंच गया। ठीक है, इसमें एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है ये सारी चीज़ें फेक थी। ठीक है, ये पूरा एक प्लानिंग की गई थी और ये एक टेलीविज़न पे ये सारी चीज़ें दिखाई गई थी। इंसान जो है वो चांद पे नहीं पहुंचा है, ये एक फेक न्यूज़ थी जो लोगों तक पहुंचाई गई थी टेलीविज़न के थ्रू, बट लोग ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, लोग जो टेलीविज़न पे देखते हैं उसको सही समझते हैं। ठीक है, बट बाद में कुछ अरसे बाद रिसर्च होती है और चीज़ें आपके सामने आती हैं कि ये चीज़ें सच नहीं हैं। ठीक है, बट क्योंकि आप ट्रस्ट करते हैं इसलिए आपको ये चीज़ें सच लग रही होती हैं। दिस ट्रस्ट कॉल्ड credibility. Credibility is an important factor in determining which news medium people find the most believable. तो कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जो जिन पे आपकी क्रेडिबिलिटी होती है, आप समझ रहे होते हैं कि नहीं, न्यूज़ चैनल्स हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, आप सारे न्यूज़ चैनल्स नहीं देखते हैं। आप जिस न्यूज़ चैनल को आप समझते हैं कि ये फेक नहीं है, ये बैलेंस वे में, ऑब्जेक्टिव वे में न्यूज़ आप तक ला रहे हैं, तो आप उसी चैनल को देखना चाहते हैं। The widespread use of the internet to transmit news does not change the basic idea. The stories posted on CNN.com or other news-oriented websites have been screened by several reporters and editors. Other websites that deal with news, report, or the many blogs that have recently appeared may not have a layer of editors or circumstances that may affect these sites' credibility. Information that is spread through email and by lesser known websites may be especially suspect. क्योंकि आप जब तक क्रेडिबिलिटी पे आपको यकीन नहीं हो, आप ठीक है, अब इसमें इतनी बड़ी एग्जांपल आपके पास है कि अब तो इंटरनेट है, चीज़ें लम्हा भर में वेबसाइट्स आपके सामने चीज़ें आ जाती हैं, डिफरेंट एंगल से चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन इसमें क्रेडिबिलिटी की कमी है। ठीक है, आपके पास जो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, गेट कीपर्स, वॉच डॉग्स, ठीक है, ये वाला फैक्टर अब नहीं होता है। ठीक है, आप किसी भी एंगल को लेके वेबसाइट्स पे आ जाते हैं और लगा देते हैं, तो हर जैसे न्यूज़पेपर में कोई चीज़ रिटन है तो वो ज़्यादा डेफिनेटली ऑथेंटिक होती है, बट यहाँ पे ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी, ठीक है, ये दो ऐसी चीज़ है जो एक बहुत बड़ा इशू बनती जा रही है।
On the dysfunctional side, media surveillance can create unnecessary anxiety. ठीक है, एक और डिसफंक्शन मीडिया का, खबरें स्पीडी आती हैं, वेरीफाई नहीं हो पाती हैं, क्रेडिबिलिटी पे भी फ़र्क पड़ा है। एक और डिसफंक्शन इसका ये है सर्वेलेंस का कि अननेसेसरी एंजाइटी हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अभी देख लें, आपके पास इतनी बड़ी मिसाल है कोविड-19, इससे रिलेटेड न्यूज़ आ रही है, खबरों में आ रही है, टेलीविज़न पे आ रही है, सोशल मीडिया पे आ रही है, इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स आ रहे हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम्स आ रहे हैं, फिर आपके पास ये टॉक शोज आ रहे हैं। एट एंड इसका नतीजा क्या निकल रहा है? ठीक है, कुछ तो है पब्लिक सर्विस मैसेजेस के थ्रू जो कुछ आपको मिल रहा है, कुछ आपको प्रिकॉशंस बताई जा रही हैं, वो ठीक है, बट इससे अननेसेसरी, ठीक है, एंजाइटी और डिसऑर्डर, ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए हैं। आप ठीक है, आपकी ये जो सोशल कांटेक्ट हैं बिल्कुल ख़त्म हो गए। कोई भी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो डेफिनेटली इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी लोगों पर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी आपके लिए एक बहुत बड़ा डिसफंक्शनल साइट की सूरत में सामने आ रही है। इतने ज़्यादा व्यूज़, इतने सारे आपके पास लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं, न्यूज़ आ रही है कि आप टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सच है और क्या गलत। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फंक्शन ऑफ सर्वेलेंस। The fact that certain individual or issues receive media attention means that they achieve a certain amount of prominence. Sociologists call this process status conferral. This term created by Lazarfeld and Martin. Status conferral. What do you mean by status conferral function? The role that mass media gives to a person, group of people or event that makes these things seem significant or important, whether justified or not. ठीक है, आपको टेलीविज़न पे आके या कोई भी मीडिया आप यूज़ करके जो भी आपकी वरीज़ हैं उनको सामने लाते हैं। ठीक है, वो भी जस्टिफाई आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि हर चीज़ टेलीविज़न पे आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये भी एक काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है। ठीक है, आप कवरेज चाह रहे होते हैं तो उसके लिए बाज़ दफ़ा आप ऐसे सोर्सेज भी लेते हैं, ऐसे मीन्स भी यूज़ करते हैं जो सही नहीं होते हैं। At the basis of this phenomenon is a rather circular belief that audiences seems to endorse. If you really matter, you will be at the focus of mass media attention. And if you are the focus of media attention, then you really matter. Knowing this fact, many individuals and groups go to extreme measures to get media coverage for themselves and their causes, so that this status conferral effect will occur. For example, parades, demonstrations, publicity stunt, and behavior are commonly employed to capture airtime or column inches. ठीक है, तो बाज़ दफ़ा आप सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए भी कुछ, ठीक है, ऐसे एक्ट कर जाते हैं कि आप सिर्फ लोगों की निगाहों में आना चाहते हैं, जबकि उसकी हकीकत वो नहीं होती है। तो ये स्टेटस कंफरल के भी एक बहुत बड़ी डिसफंक्शनल स्टेप है जो सर्वेलेंस की वजह से आता है। ठीक है, सर्वेलेंस अच्छी चीज़ है, आपके पास इंफॉर्मेशन आती है थ्रेट से रिलेटेड, डेली लाइफ से रिलेटेड, बट बिकॉज ऑफ दीज स्पीडी इंफॉर्मेशन चीज़ें वेरीफाई नहीं हो पाती हैं, विदाउट वेरिफिकेशन आपके पास आ जाती हैं, जिससे क्रेडिबिलिटी पे भी असर पड़ता है, मीडिया हो चाहे अखबार हो। और ये एक ऐसी दौड़ होती है, न्यूज़ इतनी ज़्यादा आ रही होती है जिससे अननेसेसरी एंजाइटी होती है। ठीक है, लोग समझ नहीं पाते हैं, उनमें मेंटली डिसऑर्डर हो रहा है, जिसकी मैंने अभी आपको एग्जाम दी है कोविड-19 की।
ठीक है। इसके अलावा स्टेटस कंट्रोल, कवरेज, मीडिया कवरेज, तो आप समझते हैं कि हर चीज़ मीडिया कवरेज से हासिल कर ली जाएगी, जिसमें कुछ ऐसी नॉर्म्स, वैल्यूज़ भी हम ख्याल नहीं करते हैं, और जो चीज़ें, बहुत सी चीज़ें जो हमारा कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, रिलीजियसली एक्सेप्टेबल नहीं है, बट वो हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और मीडिया कवरेज के ज़रिए वो आप तक पहुंच जाती है। ये था आपका सर्वेलेंस पॉइंट। नेक्स्ट फंक्शन इज इंटरप्रिटेशन। Closely related with the surveillance function is the interpretation function. The mass media do not supply just facts and data, they also provide information on the ultimate meaning and significance of the event. One form of interpretation is so obvious that many people overlook it. Not everything that happens in the world or any given day can be included in the newspaper or in a television or radio newscast. Media organizations select those events that are to be given time or space and decide how much prominence they are to be given. Stories that ultimately make it into the paper, on the newscast, or on a media organization websites have been judged by the various gatekeepers involved to be more important than those that did not make it. After the function of interpretation, function of surveillance, the next function is interpretation. Surveillance के थ्रू न्यूज़ आप तक आ गई, इंफॉर्मेशन आ गई, बट पांच दफ़ा इस इंफॉर्मेशन को आपने मज़ीद इंटरप्रेट भी करना होता है, क्योंकि जब तक इंटरप्रिटेशन नहीं आती है, जो आपका रीडर है, लिसनर है, वो सही तरह बाज़ दफ़ा सारे एंगल नहीं समझ पाते। तो इंटरप्रिटेशन आपको कहाँ मिलती है? समटाइम्स एट एडिटोरियल पेजेस। अगर अखबार की आप बात करते हैं तो एडिटोरियल पेजेस होते हैं जो ओपिनियन पेजेस भी कहलाते हैं। यहाँ आपको एडिटोरियल पेजेस पे इंटरप्रिटेशन मिलती है जो करंट सिचुएशन से रिलेटेड, इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स, एडिटोरियल्स, ठीक है, समटाइम्स लेटर्स टू दी एडिटर, ठीक है, वो भी आप में उसके ज़रिए भी आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें आपको मिल रही होती हैं। इसके अलावा आर्टिकल्स भी होते हैं जो कॉज एंड इवेंट्स आपके सामने लेकर आते हैं। एडिटोरियल कार्टून्स एडिटोरियल पेज पे होते हैं, ठीक है, वो भी एडिटोरियल कार्टून्स करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे नॉर्मली होते हैं, कभी कभार ये सोशल इश्यूज़ पे भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, वो इंटरप्रेट कर रही होती हैं आपको करंट सिचुएशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन आपको सर्विलेंस के थ्रू मिल गई, बट इंटरप्रिटेशन इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फंक्शन। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लें। Example of this function can be found on the editorial pages of a newspaper. Interpretation, comment and opinion are provided for the reader as an added perspective on the news stories carried on other pages. A newspaper might endorse one candidate for public office over another, thereby indicating that, at least in the paper's opinion, the available information indicates that this individual is more qualified than the other. ठीक है, एक न्यूज़पेपर में सारे पर्सपेक्टिव दिखाए जाते हैं, ठीक है। आप जो भी इशू है, कोई पॉलिसी है, वैसे प्राइम मिनिस्टर ने कोई पॉलिसी दे दी है तो उसके नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है। फिर एडिटोरियल पॉलिसी में आपको ये भी नज़र आता है, बाज़ दफ़ा एडिटोरियल्स जो होते हैं वो एंटी गवर्नमेंट होते हैं, प्रो गवर्नमेंट होते हैं। फिर एडिटोरियल्स में, कॉलम्स में जजमेंट होती है, वो जजमेंट आपके सामने आती है। थॉट प्रोवोकिंग थिंकिंग होती है, चीज़ें होती हैं जो एक लेमैन की नज़रों में नहीं होती है, बट बिकॉज ऑफ कॉलमनिस्ट बहुत सी चीज़ें आपकी नज़रों के सामने आती हैं, बहुत से ऐसे व्यूज़ आते हैं जो आप, ठीक है, एज ए लेमैन, एज ए रीडर आपके सामने नहीं आती हैं। तो ये बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन की सोर्स है एडिटोरियल पेजेस ऑफ न्यूज़पेपर। Interpretation is not confined to editorials. सिर्फ
एडिटोरियल्स ही इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे होते हैं. Articles that analyze the cause of an event or that discuss the implication of government policy are also examples of the interpretation function. Why is the price of gas going up? What impact will a prolonged dry spell have on food prices? Radio and television also carry programs or segments of programs that fall under this heading. An editorial by the manager of the TV or radio station is an example, as are television documentaries. टेलीविज़न डॉक्यूमेंट्रीज़ भी आपको इंटरप्रिटेशन कर रही होती हैं. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंट्रीज़ में दिखाई जाती हैं विच इज़ रिलेटेड टू योर सोसाइटी. तो वो अब क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज़ में ज़ाहिर है हम चीज़ की बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जा रहे होते हैं, कॉज एंड इफ़ेक्ट देख रहे होते हैं. तो डॉक्यूमेंट्रीज़ के साथ साथ आर्टिकल्स भी ये फंक्शन आप तक पहुंचा रहे होते हैं. इंटरप्रिटेशन कैन टेक वेरियस फॉर्म्स. एडिटोरियल कार्टून्स एक इसकी फॉर्म एडिटोरियल कार्टून भी है, विच ओरिजिनेटेड इन 1754 may be the most popular form. Other examples are less obvious but no less important. Critics are employed by the various media to rate motion pictures, plays, books, and records. Restaurant, cars, building, and even religious service are reviewed by some newspaper and magazines. कि एडिटोरियल कार्टून भी हमें करंट सिचुएशन के बारे में बता रहे होते हैं. बहुत मर्तबा ऐसा भी होता है कि कार्टून्स में वर्ड्स नहीं होते हैं, बट कार्टून्स देख के ही आपको बहुत कुछ चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाती हैं. तो ये भी आपको इंटरप्रिटेशन की बहुत अच्छी मिसाल देते हैं. ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन आपको कहाँ कहाँ से मिल रही है? एडिटोरियल पेजेस से मिल रही है, आर्टिकल से मिल रही है, एडिटोरियल कार्टून से मिल रही है, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जो ये रोल प्ले कर रही हैं. ठीक है, तो जस्ट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट एनफ. इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपने इंटरप्रिटेशन को भी देखना होता है. What are the consequences of the mass media performing this function? First, the audience is exposed to a large number of point of view, probably far more than they could come in contact with through personal channels. ठीक है, इससे एक फ़ायदा ये आपको होता है कि बहुत सारे लोगों के व्यूज़ आप तक पहुंच जाते हैं बिकॉज ऑफ इंटरप्रिटेशन. आप इंडिविजुअली हर एक के पास नहीं जा सकते हैं, कॉलमिस्ट के पास नहीं जा सकते हैं, चैनल्स के पास जा के आप बात नहीं कर सकते हैं, बट आपको इनकी मदद से बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उनकी राय आप तक आ जाती है. Because of this, a person with some effort can evaluate all sides of an issue before arriving at an opinion. ठीक है, तो आप किसी भी इशू के बारे में बहुत से एंगल आपके सामने हो जाते हैं जो डेफिनेटली आपको एक ओपिनियन बिल्ड करने में हेल्प कर रहे होते हैं. Additionally, the media make available to the individuals a wide range of expertise that he or she might not have access to through interpersonal communication. एक्सपर्ट्स आ रहे होते हैं. आपने देखा होगा टेलीविज़न पे किसी भी इशू पे बात करने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स आ रहे होते हैं. तो एक लेमैन पर्सन के लिए आसान नहीं है कि वो जाके एक्सेस करे एक्सपर्ट्स को. तो बिकॉज ऑफ दीज चैनल वो एक्सपर्ट्स आके अपनी राय दे रहे होते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प कर रही होती है. ठीक है, आपकी जजमेंट पे, आपके व्यूज़ पे. ठीक है, वो उनकी राय जो है आपको कन्विंस कर लेती है. तो ये एक बहुत बड़ा आपके पास जो है इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं. इंटरप्रिटेशन के आपके ज़रिए किन लोगों के ज़रिए आप तक आ रही है. ठीक है, पॉलिटिशियंस होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं जो इस वक्त आके आपको मेजर सूरत हाल के बारे में बता रहे होते हैं. तो इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जब इन लोगों के ज़रिए आप तक पहुंच रही होती है तो डेफिनेटली इसका जो है बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है. There are however certain dysfunction that might occur.
अब इसके फ़ायदे भी हैं इंटरप्रिटेशन के, तो कुछ ना कुछ इसके फिर डिसफंक्शन भी आपके सामने आएंगे कि डिसफंक्शन भी हम कुछ ना कुछ जो हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट, देयर इज़ नो गारंटी दैट इंटरप्रिटेशन बाय एक्सपर्ट्स आर एक्यूरेट एंड वैलिड. Second, there is the danger that an individual may in the long run come to rely too heavily on the news and views carried in the media and lose her or his critical ability. It might lead to the dysfunctional situation of audience and of people allowing others to think for them. ठीक है, अब इसका डिसफंक्शन क्या आ रहा है कि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपर्ट्स जो हैं, ठीक है, वो सही राय दे रहे हों. ठीक है, बहुत सारे आजकल चीज़ें हैं इसके पीछे. ठीक है, कुछ चैनल्स की पॉलिसी होती है कि उन्होंने प्रो गवर्नमेंट ही बोलना है या एंटी गवर्नमेंट बोलना है. ठीक है, या वो किसी ख़ास चैनल से, किसी का ख़ास पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो इसकी कोई गारंटी नहीं है. ठीक है, आप नहीं दे सकते हैं कि एक्सपर्ट की राय ही सही है, ये जजमेंट आप नहीं कर सकते हैं. ठीक है, दूसरा इसका डिसफंक्शन क्या है कि आपको ये मीडिया एक पैसिव ऑडियंस बना रहे हैं. ठीक है, आप दूसरों की राय अपने ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं, आपकी सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म होती जा रही हैं. किसी भी इशू में 10 प्रोग्राम आप देखेंगे, 10 राय आप तक मिलेगी, तो आप बिल्कुल इससे कंफ्यूज हो जाएंगे और आपकी सलाहियतों को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है. तो ये इंटरप्रिटेशन के कुछ डिसफंक्शन भी हैं और एक कुछ इसके एडवांटेजेस भी थे जो यहाँ पे डिस्कस हुए हैं. देन कम टू नेक्स्ट, लिंकेज. लिंकेज इज अनदर फंक्शन ऑफ mass media. The mass media are able to join different elements of society that are not directly connected. For example, mass advertising attempts to link the needs of buyers with the product of sellers. ठीक है, मास मीडिया लिंकेज का फंक्शन भी कर रहा होता है. किस तरह कर रहा होता है? बायर्स और सेलर्स को, ठीक है, वो एक लिंक दे रहा होता है. अगर आप न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड सेक्शन होता है. ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारी बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड न्यूज़ मिलेगी. ठीक है, इसी तरह अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लिंकेज का फंक्शन आपको हर जगह नज़र आएगा. Telethons that raise money for the treatment of certain disease are another example of this linkage function. The needs of those suffering from the disease are matched with the desires of others who wish to see the problem eliminated. Another type of linkage occurs when geographically separated groups that share a common interest are joined by the media. ठीक है, ये बहुत बड़ा फंक्शन है लिंकेज का. आप जोग्राफिकली बहुत सेपरेटेड हैं, दूर दूर हैं, बट आपके पास न्यूज़ आ रही है कुछ ऐसी जो आपको ज्वाइन कर रही है थ्रू मीडिया. स्पेशली सोशल मीडिया इस दौर में बहुत आगे निकल गया है. ठीक है, आपको लिंकेज का फंक्शन सबसे ज़्यादा इस वक्त जो तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आएगा सोशल मीडिया पे. ठीक है, सोशल मीडिया बायर एंड सेलर को एक लिंकेज दे रहा है और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सी टेक्निक्स आ रही हैं आपके अटेंशन कैच करने के लिए. आपको आए दिन मैसेजेस आ रहे होते हैं. ठीक है, स्पेशल डेज होते हैं, उस पर स्पेशल मैसेजेस आ रहे होते हैं, स्पेशल डिस्काउंट दिए जा रहे होते हैं, सेल के मैसेज हैं. ठीक है, लोग सोशल मीडिया के थ्रू उनको पता चल जाता है कहाँ सेल लगी है. और फिर ये जो है बायर सेलर वाला फैक्टर, ये बहुत तेज़ी से, ठीक है, ऑनलाइन, अब तो हर चीज़ ऑनलाइन चल रही है, ऑनलाइन सेल हो रहा है, ऑनलाइन बाइंग हो रही है. तो ये बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत बड़ा रोल है. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू तो आप तक पहुंच ही रहे, बट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा इस वक्त पावरफुल जो है आपके पास सोशल मीडिया है. ठीक है, क्योंकि यार 24 घंटे आपके हाथ में रहता है. तो इससे ये फंक्शन जितना ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया प्ले कर रहे हैं, बाकी मेरे ख्याल में इस दौर में सब पीछे रह गए हैं. The best example of linkage, however, are on the internet. The online auction site.
ठीक है, इसमें आपकी मिसाल आप अगर अपने मुल्क यहाँ देना चाहते हैं, OLX, ठीक है, बहुत बड़ी मिसाल है OLX। अब घर बैठे आप अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं और ये बहुत लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। The linkage function is present in other media as well. The magazine allow a person interested in games of chance to be linked to others with a similar interest. Cell phone links parents with children. Sports talk radio joins people with a common interest in athletics. The media can also create totally new group by linking member of society with similar interests, a process known as audience building. ठीक है, आप मीडिया पे बैठ के डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो आपको लिंक कर रहे हैं। ठीक है, आप डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं बिकॉज ऑफ मीडिया आप तक, स्पेशली सोशल मीडिया। ठीक है, कितने ही ग्रुप्स हैं। ठीक है, आप चाहे अपनी रिलीजियस एक्टिविटी में देखें, आप घर बैठे आपको कुरान की तजवीद की भी क्लास मिलेगी। ठीक है, आपको अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप सारे अपने जो भी ऑनलाइन है कोर्सेज भी कर सकते हैं, खाना पकाना भी सीख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इस वक्त एडवांटेज है लिंकेज की, जो ये फंक्शन प्ले कर रहे हैं मीडिया, स्पेशली social media, internet. On the other hand, this linkage function may have harmful consequences. अब इसके हर चीज़ की जहाँ फ़ायदे हैं वहीं हर चीज़ के कुछ ना कुछ डिसफंक्शन भी हैं, कुछ harmful consequences भी हैं। There were more than 300 hate sites on the internet. Terrorists can use these sites to spread hate propaganda and to recruit new members. Some websites provide password-protected online discussion group in which terrorists can persuade new members to join their cause. ठीक है, तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको हार्मफुल इफ़ेक्ट बताएंगी। ठीक है, आपके इंटरनेट के थ्रू बहुत से मसले भी पैदा हो रहे हैं इस लिंकेज की वजह से। तो ये दोनों चीज़ें आपकी साथ साथ चल रही हैं। कुछ लोग प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ कर रहे हैं इस फंक्शन को। प्रोपेगेंडा भी ज़ाहिर है आपको पता है एक नेगेटिव एस्पेक्ट ही रखता है। तो ये फंक्शंस हो गए आपके सर्विलेंस, आफ्टर सर्विलेंस इंटरप्रिटेशन, देन द फंक्शन ऑफ लिंकेज। आफ्टर फंक्शन ऑफ लिंकेज another function is transmission of values. This is also very important function. The transmission of value is an important function of the mass media. It has also been called the socialization function. Socialization refers to the ways an individual comes to adopt the behavior and values of a group. The mass media portray our society, and by watching, listening, and reading, we learn how people are supposed to act and what values are important. ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यू का बहुत अहम ज़रिया मीडिया है। ठीक है, मीडिया के ज़रिए हम चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, हमारी नॉर्म्स, बिहेवियर, वैल्यूज़ ये हम देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, अखबारों में रीड भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मीडिया का ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यू का एक बहुत बड़ा ज़रिया है टेलीविज़न, रेडियो, फिल्म। कंसिडर द इमेजेस ऑफ एन इम्पॉर्टेंट बट फेमिलियर कॉन्सेप्ट एज पोर्ट्रे इन द मीडिया, मदरहुड। मीडिया में बहुत बड़ी मिसाल मदरहुड। ठीक है, आपने बहुत सारे एड्स ऐसे देखे होंगे जो माँ के बारे में होते हैं। ठीक है, इसमें एक बड़ा अच्छा सा ठीक है वैल्यू ट्रांसमिट की जा रही होती है अबाउट योर मदर। बहुत से ऐसे ऐड हैं ठीक है जहाँ पे आप देख रहे होते हैं कि आपकी मदर बहुत कंसर्न्ड हैं। ठीक है, लाइक सीरियल्स का ऐड होता है, ठीक है, डिटर्जेंट का ऐड होता है कि आप डिफरेंट वो एंगल से दिखा रहे होते हैं कि मदर कितनी कंसर्न्ड होती हैं अपने बच्चों से। ठीक है, तो मदर एंड चिल्ड्रन का जो रोल रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं थ्रू टेलीविज़न, ठीक है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। मास मीडिया ममीज आर यूजुअली क्लीन, प्रीटी, cheerful
एंड अफेक्शनेट। बहुत अच्छा रोल आपको दिखाया जाता है मदर का। मीडिया मदर्स टेंड टू बी पॉजिटिव, वार्म एंड केयरिंग। बहुत से ऐसे ऐड हैं, जैसे मिल्क का ऐड है, ठीक है, वह हमारे यहाँ एक सॉल्ट का ऐड आता था जिसमें ये फौरन बताया जाता था कि बच्चा जो है वो बढ़ नहीं रहा है, तो मदर को बहुत वरी दिखाया जाता था, ठीक है। तो कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं। अब मदर्स डे आ रहा है, आप टेलीविज़न पे देख रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं आप पे वैल्यूज़ कि आपने मदर को वैल्यू करना है। आप डिफरेंट सेगमेंट दिखाए जा रहे हैं, प्रोग्राम्स दिखाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप टेलीविज़न के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, स्पेशली सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट तो है ही, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें भी आप तक ट्रांसमिट होके पहुंच रही हैं। द नेक्स्ट इज मास मीडिया एंड socialization. Sometimes the media consciously try to instill values and behavior in the audience. Many newspapers report whether accident victims were wearing seat belts at the time of impact. TV writers voluntarily agreed to portray drug usage more responsible in their programs and to include references to designated drivers whenever possible. The next time you watch current television show, see if you can find anyone smoking a cigarette. The health concern regarding smoking have prompted it to virtually disappear from prime-time television. मास मीडिया के ज़रिए आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, ठीक है। आपको सोशलाइजेशन प्रोसेस से ये मास मीडिया गुजार रहा होता है। आए दिन आप देखते हैं ट्रैफिक से रिलेटेड कुछ ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, जिसमें बहुत बड़ी मिसाल ये दी गई है कि हेलमेट, ठीक है, हेलमेट पहनना ज़रूरी है। उससे रिलेटेड आप पब्लिक सर्विस मैसेजेस भी देख रहे होते हैं, ठीक है। अभी ये कोरोना वायरस है, आप उससे रिलेटेड पब्लिक सर्विस मैसेजेस देख रहे हैं टेलीविज़न पे, रेडियो पे, ठीक है ना, देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं उससे रिलेटेड, और बार बार ये चीज़ रिपीट भी हो रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बच रहे हैं। इसी तरह सिगरेट है, विच इज़ वेरी हार्मफुल। सिगरेट से रिलेटेड भी आए दिन आप ऐड देख रहे होते हैं, ठीक है। अब ऐड आया करते थे, बट अब इस पे सख्ती से, ठीक है, इसको ख़त्म किया गया है, और स्पेशली प्राइम टाइम पे आप नहीं देख रहे होते। इवन अगर टीवी ड्रामे में भी किसी को दिखाया जाए वो स्मोकिंग कर रहा है, तो वहाँ पे ज़रूर नीचे एक नोट लिखा होता है कि स्मोकिंग इज़ डेंजरस टू योर हेल्थ, ठीक है। तो ये जो सोशलाइजेशन के प्रोसेस में आपको ये चीज़ें बहुत हेल्प कर रही होती हैं। There are probably countless other examples of values and behavior that are in part at least socialized through the media. Let us examine some of the consequences of having the mass media serve as the agent of socialization. मास मीडिया को आप एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन भी कहते हैं। At one level, value transmission through the mass media helps stabilize society. Common values and experiences are passed down to all members, thereby creating common bond among them. On the other hand, values and cultural information are selected by large organizations that may encourage the status quo. Mass media can also transmit values by enforcing social norms. ठीक है, बाज़ दफ़ा सोशल नॉर्म्स आप पे इन्फोर्स की जा रही होती है, ठीक है, ये मुसल्लत की जा रही होती है, ठीक है। आपको इसके ज़रिए ज़ाहिर है आप कुछ पॉजिटिव चीज़ें देख रहे होते हैं, तो सोशलाइजेशन के ज़रिए आप कुछ नेगेटिव चीज़ें भी सीख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट ऐड को ले लें आप। ऐड है, फॉर एग्जांपल ये टैंक का ऐड है, आपको दिखाया जाएगा एनर्जी ड्रिंक
ठीक है, एनर्जी ड्रिंक का मेरा नहीं ख्याल है कि किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा है। इससे बेहतर है कि आप पानी पी लें, लेकिन आपको इतने ज़्यादा उसको ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है कि स्पेशली यंग जनरेशन इससे बहुत जल्दी जो है चीज़ें अडेप्ट कर रही होती है। इसी तरह आप मोबाइल्स को ले लें, मोबाइल का ऐड, ठीक है, उसमें इतने ज़्यादा आपको चीज़ें दिखाई जाती हैं, उसकी इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स दी जा रही होती हैं कि आए दिन आप इस दौर में लग जाते हैं कि भाई अब आपको अपना मोबाइल चेंज करना है, ठीक है, अब ये वाला लेना है, इसमें तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मैं जो वैल्यूज़ हैं, सोशल नॉर्म्स बाज़ दफ़ा इन्फोर्स भी कर रहे होते हैं आपको सोशल मीडिया के ज़रिए और टेलीविज़न के ज़रिए भी। Not every attempt by the media to enforce social norms is successful, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें सक्सेसफुल हों, ठीक है, बाज़ दफ़ा चीज़ें सक्सेसफुल हो जाती हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही लें। द नेक्स्ट इज़ टेलीविज़न एंड सोशलाइजेशन, ठीक है, टीवी एक ऐसा ज़रिया है जिसको बहुत बड़ा सोशलाइजेशन का टूल कहते हैं, ठीक है, टेलीविज़न के ज़रिए हम जितना सीखते हैं, ठीक है, इतना किसी चीज़ का असर नहीं होता है। Of all the mass media, television probably has the greatest potential for socialization. By the time an individual is 18, he or she will have spent more time watching television than in any other single activity. A prime time program that is popular with young people might draw an audience of 6 million 6 to 11 years old. Because of this wide exposure, several writers have warned of possible dysfunction that might occur if television is the most important channel of socialization. For instance, since so many TV programs contain violence, it has been feared that young people who watch many such programs might be socialized into accepting violence as a legitimate method of problem solving. ठीक है, हम टेलीविज़न पे वायलेंस के प्रोग्राम बहुत देखते हैं, आए दिन देख रहे होते हैं, नए नए तरीके सीख रहे होते हैं, ठीक है, तो इसका डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, ठीक है, आप तरीके सीख रहे होते हैं, आपका एक्सपोजर ज़्यादा होता है टेलीविज़न, इवन सोशल मीडिया आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि हर घर में टेलीविज़न होता है, स्पेशली एल्डरली पीपल जो होते हैं वो इतने सोशल मीडिया से अभी यूज टू नहीं हुए, नई टेक्निक्स हैं, तो टेलीविज़न तो चलता ही रहता है, ठीक है, तो टेलीविज़न का एक्सपोजर जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसके जहाँ पे फ़ायदे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसानात भी आपको नज़र आएंगे, ठीक है। टीवी प्रोग्राम्स जो हैं आपको बहुत ज़्यादा बात चीज़ें आप वायलेंस की भी देख रहे होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे होते हैं जिनका डेफिनेटली एक बैड इम्पैक्ट होता है आपके जहनों में। तो टेलीविज़न जो है स्पेशली बच्चों के लिए कहा जाता है कि बच्चे सबसे ज़्यादा, ठीक है, वो जितना ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं बच्चे इतना ही ज़्यादा टेलीविज़न की दुनिया को सच समझते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े जो होते हैं टीनेजर्स होते हैं उनको पता होता है कि बहुत सी चीज़ें फेक हैं, बट जो छोटा बच्चा है वो इस चीज़ को नहीं कर सकता है जज, ठीक है। फॉर एग्जांपल साबुन है, साबुन के एड्स आते हैं कि साबुन बहुत सारे ऐसे हैं कि जर्म्स किल कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत सारी शैम्पू ऐसे दिखाए जा रहे होते हैं कि उनको लगाते ही बाल लंबे हो गए, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, बड़े तो जज कर सकते हैं लेकिन बच्चों को वो दुनिया ही सही लग रही होती है, वो उनके कैरेक्टर्स होते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स के थ्रू उन तक बहुत सारे चीज़ें पहुंचाई जा रही होती हैं, तो बहुत ज़्यादा जो इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट है स्पेशली बच्चों पे पड़ रहा होता है। टेलीविज़न एंड सोशलाइजेशन टीनेजर्स पे भी हो रहा होता है कि कुछ वायलेंस से नेगेटिव रिलेटेड चीज़ें वो जल्दी सीख जाते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो इसका बैड इम्पैक्ट होता है वो आपके बच्चों पर होता है। द नेक्स्ट फंक्शन इज entertainment. Another obvious media function is that of entertainment, ठीक है, the most important function entertainment, मीडिया का सबसे important काम अब
entertainment है. Motion pictures and sound recordings are devoted primarily to entertainment. Even though most of a newspaper focuses on the events of the day, comics, puzzle, horoscopes, games, advice, gossip, humor, and general entertainment features usually account for around 12% of the content. ठीक है, एंटरटेनमेंट आपको सिर्फ टेलीविज़न और रेडियो से नहीं मिल रही होती है, बल्कि आपको न्यूज़पेपर्स में भी एंटरटेनमेंट मिल रही होती है इन द फॉर्म ऑफ पजल्स, हॉरोस्कोप्स दिए जाते हैं, डिफरेंट गेम्स होते हैं, कॉमिक्स होते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एंटरटेन कर रही होती हैं. टेलीविज़न इज़ प्राइमरली डिवोटेड टू एंटरटेनमेंट with about 3/4 of a typical broadcast day falling into this category. The entertainment content of radio varies widely according to station format. Some station may program 100% news, while others may schedule almost none. In like manner, some magazines have little entertainment content, while others are almost entirely डिवोटेड टू एंटरटेनमेंट. ठीक है, ना सिर्फ आपको अखबार से एंटरटेनमेंट मिल रही होती है, बल्कि बाज़ दफ़ा कुछ मैगजीन्स भी आपको एंटरटेनमेंट पहुंचा रहे होते हैं. द इमर्जेंस ऑफ मोबाइल मीडिया हैज़ ऑल्सो एम्प्लीफाइड द एंटरटेनमेंट फंक्शन ऑफ द मीडिया. Especially equipped vehicles let children watch DVD as they go on family trips. Travelers in airport terminals can play games on their cell phones or watch movies on their laptops while they wait. आपको जो है एंटरटेनमेंट हर जगह मिल रही होती है. ठीक है, अब आपके हाथ में सोशल मीडिया है, वो बहुत बड़ा एक आपके पास ज़रिया है एंटरटेनमेंट के लिए. ठीक है, अब आपके हाथ में डिवाइसेस आ गए हैं. ठीक है, अब आपको पहले ज़माने में स्टोरी टेलर्स हुआ करते थे, मैजिशियंस होते थे जो एंटरटेनमेंट का काम किया कर रहे होते थे. बट बिकॉज ऑफ मीडिया अब आपको इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है. ये सारे काम आपके पास जो हैं डिवाइसेस के थ्रू हो रहे हैं. ठीक है, तो मीडिया का जो मोस्ट ऑब्वियस फंक्शन है एंटरटेनमेंट, वो आपको सारे मीडिया के टूल से मिल रहा है. टेलीविज़न, रेडियो, फिल्म, सोशल मीडिया, ये सारे अब इस दौर में लग गए हैं और आपको घर बैठे सारी चीज़ें आपके पास पहुंच रही हैं. तो इससे ये भी फ़ायदा होता है, ठीक है, कि आपने घर बैठे आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, आपको कहीं बाहर नहीं निकलना पड़ रहा है. ठीक है, लेकिन बस इससे एक चीज़ ये भी आ गई है कि अब आप जो हमारी यंग जनरेशन है, ठीक है, बहुत लेज़ी हो गई है. अब आपको किसी चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, हर चीज़ें आपको डिवाइस के थ्रू मिल रही हैं. तो जहाँ पे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, वहाँ पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपके सामने आ रहे हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन फॉर सोसाइटी. ये इसको पूरा आपने सुनना है, इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं. ठीक है, इससे रिलेटेड आपको इंटरनेट पे भी जाएं, बहुत सारी चीज़ें आपको ईज़िली अवेलेबल होंगी. आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडेज क्लास. नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं और इसी हम फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करेंगे. आज हमने मैक्रो एनालिसिस फॉर सोसाइटी पढ़ा है. अपनी अगली क्लास में हम फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन फॉर इंडिविजुअल मैक्रो एनालिसिस पढ़ेंगे. Until then, Allah Hafiz.